Hello students, in this video we will continue further with kinematics and we will discuss graphs. Okay, ये जो ग्राफ का सेक्शन है that is very important, extremely important. Okay, so basically तीन टाइप के ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे. So तीन नहीं, there will be total 4 types of graphs. So first one is position versus time. So you can have position या कई बार आप इसको displacement कहते हो. So either you can use x or s, x versus t graph. Okay. Second graph जो हम लोग पढ़ेंगे that will be velocity versus time graph. अच्छा. The third graph that we are going to study is acceleration versus time graph. Acceleration. Okay. And the fourth graph that we are going to study, जो बहुत ही rarely यूज किया जाएगा, sorry, that will be velocity versus displacement graph. Okay. Now कुछ और ग्राफ्स आएंगे, जैसे कई बार एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, फिर एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, बट ये बहुत रेयर होता है. मतलब दीज आर द 4 ग्राफ्स दैट वी विल कॉमनली यूज. उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बहुत ज्यादा यूज होंगे. ओके. नाउ किसी भी ग्राफ के अंदर वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, let's say you have x axis, you have y axis over here. So when you have this kind of a graph, so this is called as downward sloping curve, right? Now what does downward sloping curve mean? So जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. So whenever you have a downward sloping curve, इसका जो slope होता है, that slope is negative. Okay, so whether it is a straight line or whether it is a curve, as long as it is downward sloping, आपका जो slope होगा वो हमेशा negative होगा. अब किसी भी ग्राफ के लिए आपका slope कैसे निकाला जाता है? Slope is always calculated as dy by dx. Okay, so अगर जो आपको y as a function of x दिया हुआ है, okay, तो इसी function के basis पे हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करेंगे. And if you want to talk about slope, so slope would be equal to dy by dx, that is derivative of y with respect to x. Okay. Now similarly when you have upward sloping curve, so ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये कर्व ऐसा हो सकता है, ये कर्व ऐसा हो सकता है. इन सारे केसेस में y x, this is your upward sloping graph or upward sloping curve. Whenever it is upward sloping, आपका जो हमेशा slope होगा, that slope will always be positive. So slope जो होता है, that slope is going to be positive. ठीक है. Now there is something special about straight line. हम लोगों ने बेसिक मैथ, मैंने आपको कहा था कि आपको बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के कुछ वीडियोस देखना है टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो आई अगेन रिपीट इट. ये लेक्चर देखने से पहले आप वो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को समझने की कोशिश करो. वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 2 लेक्चर्स है, बेसिक ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन 2 लेक्चर्स को आप देखो. ओके. नाउ व्हेन यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, आपका जो स्लोप होता है, दैट स्लोप इज कांस्टेंट. सो फॉर स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज कांस्टेंट. ओके. एंड अगर जो आपका स्लोप वेरिएबल है, इफ द स्लोप इज वेरिएबल, इट मीन्स द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. सो फॉर इफ द स्लोप इज वेरिएबल, then the graph is not a straight line. Straight line. Okay. Now हमें ये पता है कि किसी भी ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है, that is always calculated as dy by dx. Okay. तो उसी तरह से when you have displacement versus time graph और position versus time graph, तो आपका जो स्लोप होगा
दैट विल बी इक्वल टू dy by dx, बट y एक्सिस पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, सो दिस इज ds, x एक्सिस पे टाइम है तो दिस इज dt. सो ds by dt या dx by dt क्या होता है आपको पता है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी. So I can say for position versus time graph, slope is equal to velocity. ठीक है. Now for velocity versus time graph, आपका जो slope होगा वो क्या होगा? Your slope would be equal to dy by dx, so dv by dt, and dv by dt derivative of velocity with respect to time, ये क्या होता है? This is acceleration. सो फॉर v वर्सेस t ग्राफ आपका जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. फॉर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपका जो स्लोप होगा दैट इज वेलोसिटी. ओके, नाउ फॉर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपका यहां पे जो स्लोप होगा दैट इज dy by dx, so this is dA by dt. Now this is no physical quantity as such, मतलब हम लोगों ने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं की है विच इज dA by dt, बट हम लोग बस ये कहते हैं कि दिस मेजर्स जर्क. ये जो है बस ये जर्क मेजर करता है कि झटके कितने लगते हैं. ओके, एंड फाइनली यू हैव वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. सो वेलोसिटी इज v, डिस्प्लेसमेंट इज s. सो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो आपका ये स्लोप होगा दिस विल बी इक्वल टू dy by dx, सो dv by ds. नाउ dv by ds का अपना मीनिंग नहीं होता, बट हमें ये पता है ना एक्सेलरेशन जो होता है a कैन बी रिटन एज v dv by dx या v dv by ds. तो अगर जो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप आप निकालोगे तो आपको dv by ds की वैल्यू मिल जाएगी, एंड उस पॉइंट पे अगर जो आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. Right? So these are the four graphs that are very very important for us. Okay. उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन का एक मीनिंग होता है. व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन? सो इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द ग्राफ. द ग्राफ. ओके, सो इफ यू हैव दिस, मान लो ये x है, ये y है, ये आपका ऐसा कर्व है. ओके, सो लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2 करस्पॉन्डिंग टू x1, लेट्स से दिस इज y1 करस्पॉन्डिंग टू x2, लेट्स से दिस इज y2. ओके, अब जब आप इंटीग्रल ऑफ ये करते हो, इंटीग्रल ऑफ y dx, जहां पे x वेरीज फ्रॉम x1 टू x2, so this is nothing but area between the graph and ये जो टर्म है that axis. तो यहाँ पे ये x है तो it is an x axis. So when I do integral of y dx, I am talking about the area of the curve and the x axis between x1 and x2. So basically this is the area that we are talking about. So when you do integration, this is the area that we are calculating. Okay. So अगर जो आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आप उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करते हो तो दैट एरिया वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dx. ओके, सो बाय द सेम लॉजिक मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो अगर जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आपका एरिया अंडर द ग्राफ will be equal to integral of y dx, so v dt between t1 and t2. Now v dt क्या होता है, हमें ये पता है कि v is equal to ds by dt, so ds is equal to v dt. तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होता है आप इंटीग्रेट करते हो ना, v dt from t1 to t2. So when I say v dt, it is nothing but displacement. So when I say v dt, this is nothing but displacement. Net displacement. So when you have velocity versus time graph, the area under the graph and the time axis, area between the graph and the time axis, क्योंकि यहाँ पे t दिया हुआ है तो area
between the graph and the time axis, this is equal to the net displacement. Okay. Similarly, यहां पे अगर जो आप देखोगे एरिया अंडर द ग्राफ will be equal to integral of y dx, so integral of v dt. Time varies from t1 to t2. ओके, अब इंटीग्रल ऑफ v dt क्या होता है? हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू dv बाई dt. सो dv इज इक्वल टू a dt. ओके, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो मिलता है आपको दैट इज v माइनस u, that is final velocity minus initial velocity. This is equal to a dt. So a dt, integral of a dt is final velocity minus initial velocity. So I'll write it over here. नहीं, a dt, sorry. y dx होता है ना, तो आपका y a है. So integral of a dt, this is equal to v minus u. ठीक है. सो ये कुछ बेसिक रूल्स है. ये बेसिक रूल्स आपको याद रखने इन चार ग्राफ्स के. यू हैव टू रिमेंबर दीज बेसिक रूल्स. ठीक है. देयर इज वन मोर ग्राफ दैट वी विल टॉक अबाउट, दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो बहुत कम यूज किया जाता है बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट. बट उसके पहले दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ओके ओके. Let's say acceleration, displacement. ठीक है. Now acceleration versus displacement graph. Now यहां पे if let's say if this graph is this way, let's say this is position x1, this is position x2. So let's try to see ki what do you get by finding out area under the graph. Okay, now area under the graph in this case, the graph we know it is equal to integral of y dx. सो y हमारे केस में a है इंटू ds. करेक्ट. नाउ इन दिस केस आई नो दैट एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv बाई ds या v dv बाई dx. a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू ds, ये कट हो जाएगा. सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ v dv वेर v वेरीज फ्रॉम u टू v. u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, v इज योर फाइनल वेलोसिटी. अब इंटीग्रल ऑफ x dx होता है x स्क्वायर बाय 2, तो इंटीग्रल ऑफ v dv विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2, जहां पे v वेरी करता है u से v. सो v के जगह पे आप v पुट करोगे, माइनस v के जगह पे आप u पुट करोगे. सो यू कैन सी दैट द एरिया अंडर द ग्राफ, इन दिस केस एरिया बिटवीन द ग्राफ and displacement axis is equal to v square minus u square by 2. v is your final velocity, u is your initial velocity, so v square minus u square by 2. okay, ये बेसिक रूल्स अगर जो आपको याद हो जाता है ना कि स्लोप क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है, कि व्हेन यू हैव अ कांस्टेंट स्लोप इट मींस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन यू हैव कांस्टेंट व्हेन यू हैव अ वेरिएबल स्लोप इट मींस इट कैन नॉट बी, द ग्राफ कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. ये बेसिक रूल्स आपने याद कर दो. ये बेसिक रूल्स याद हो जाता है ना, फिर कोई भी ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं होता. इट इज रिलेटिवली वेरी वेरी सिंपल. सो अब ग्राफ्स बनाना हम लोग स्टार्ट करता है. ओके, सो पहला टाइप का जो मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इज यूनिफॉर्म मोशन. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है.
सो अब एक एक ग्राफ बनाना स्टार्ट करता है। अच्छा, पोजीशन एट एनी पॉइंट, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एस, बिकॉज योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज सिंपली v इंटू टी। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही लिखते हैं ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इट इज v इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल माइनस इनिशियल, so x final is equal to x initial plus v into t। so ये कुछ ग्राफ्स है, ये कुछ इक्वेशंस है। ओके, अब इन इक्वेशंस को यूज करके एक एक ग्राफ बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू डू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। नाउ इफ यू लुक एट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, योर एक्सेलरेशन इज 0 एंड इट इज ऑलवेज 0। तो आपका ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा, एक्सेलरेशन आपका हमेशा 0 ही है, इट इज ऑलवेज 0। ठीक है, नाउ यहां पे एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस कितना है? एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस है ही नहीं ना कुछ एरिया, क्योंकि ये ग्राफ ये टाइम एक्सिस पे ही आ रहा है। सो दिस एरिया इज इक्वल टू 0। नाउ ए वर्सेस टी ग्राफ के अंदर एरिया क्या होता है? व्हाट इज द एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ? तो हमने निकाला हुआ है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो एरिया अंडर द ग्राफ इज v माइनस यू। सो आई कैन से area under the graph is basically v minus u. This is equal to 0, so this is v is equal to u. So इसका मतलब initial velocity and final velocity same है, which is obvious क्योंकि आपकी velocity constant है, acceleration नहीं है ना। acceleration नहीं है तो your velocity is always going to be constant. So that is why final velocity and initial velocity are equal. Okay. अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ हम लोग बनाएंगे दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ओवर हियर। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, ओके, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है तो ये ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। Value of velocity is not changing with time. Okay, now this means positive velocity, and ये तभी होगा when object is moving in positive direction. So आप जो भी direction positive decide करते हो, object अगर जो उस direction में move कर रहा है तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, object is moving in positive direction. Okay, there is one more possibility. आपकी velocity constant है but it can also be negative. ये देखो ना, ये origin के नीचे है तो this is negative velocity. So negative velocity वो होती है कि object जो है वो negative direction में move कर रहा है. That is what negative velocity means. In both the cases magnitude is constant. मान लो ये +10 meters per second है या ये -10 मीटर्स पर सेकेंड है, तो आपका मैग्नीट्यूड तो 10 ही है ना दोनों केसेस में। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट ही है, बस माइनस ये इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड v वर्सेस t ग्राफ इन दिस केस। ओके, नाउ इन दिस केस द एरिया अंडर द ग्राफ, अगर जो ये हम लोग ये हमारा ग्राफ मानते हैं तो द एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, नाउ ओके, अब ये एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये क्या होता है? हमने देखा था एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस केस योर नेट डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सो दिस एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो आपका डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू, दिस इज योर वेलोसिटी ये v है
ओके, सो बेसिकली दिस इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ. आपका लेंथ है 0 से t. दिस इज टाइम इक्वल टू 0, दिस इज टाइम इक्वल टू t. सो दिस इज t into breadth. This is 0, this is v to v. So आपको s is equal to v into t. ये ग्राफ मिल जाएगा. You can see over here s is equal to v into t. ठीक है. ओके, अब थर्ड वन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, यूजुअली ना हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इसको नहीं कहते, इवन दो बहुत सारे बुक्स में ये लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिखता है. इट इज बेसिकली पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, हाँ, ये जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये कैसे बनेगा यहां पे? तो इट इज योर एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल प्लस वी टी. So x final, so position is your final position. This is v into t plus x initial. Okay. Now for position versus time या displacement versus time, आपका जो slope होता है, it is dx by dt, that is velocity. Okay. अब velocity question में दी हुई है कि it is constant. तो अगर जो आपकी वेलोसिटी जो है, इफ इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, आपका स्लोप कांस्टेंट है. स्लोप जब कांस्टेंट होता है तो हमें पता है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप इज कांस्टेंट, सो इट मींस इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. इट ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग वो देखते हैं कि ग्राफ हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. अब आप t की वैल्यू 0 पुट करो. आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको यू विल गेट इनिशियल पोजीशन ना. सो लेट मी राइट दिस इक्वेशन दिस वे. x फाइनल की जगह पे आई जस्ट राइट दिस एज x इज इक्वल टू v इंटू टी प्लस x इनिशियल. ओके, आप और एक तरह से देख सकते हो कि इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन. इफ यू सी x एंड t दोनों की पावर 1 है ना. जब दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 होती है तो इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है. अब आप टाइम की वैल्यू 0 पुट करो. सो इफ यू पुट t एज 0 यू विल गेट x इज इक्वल टू x इनिशियल. सो लेट्स से अगर जो ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट से वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है. ओके, लेट्स अज्यूम दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन. इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन योर वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव. करेक्ट. एंड इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, आपका स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा. स्लोप पॉजिटिव है तो वी नो दैट व्हेन द स्लोप इज पॉजिटिव, कर्व इज और द ग्राफ इज अपवर्ड स्लोपिंग. तो अब इन सारी चीजों को आपको एक साथ कंबाइन करना है. एक तो ग्राफ ऊपर भी जा रहा है, दूसरा ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा. एंड यहां पे जो आपका स्लोप होगा, द स्लोप इज इक्वल टू द स्पीड v और द वेलोसिटी. ठीक है. सो आई होप आपको ये जो ग्राफ्स है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ्स आपको समझ में आ चुके. यू हैव अंडरस्टूड दीज ग्राफ्स. ओके, फाइन. नाउ द नेक्स्ट मोशन दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इज एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वो मोशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. ओके, सो द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू राइट नाउ इज रिमेंबरिंग दिस. ये जो 4 चीजें है, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये फिर इसके नीचे जो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी हैव डन इन दिस वीडियो. अगर जो एक बार ये समझ में आता है, ये चीजें आपको याद रह जाती है, फिर एक्सेलरेटेड मोशन करना वो रिलेटिवली सिंपल हो जाएगा. फिर आपको समझने में वो आसानी होगी. बट अगर जो यही अनक्लियर है तो एक्सेलरेटेड मोशन जो होगा उसके ग्राफ्स आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाएंगे. ठीक है. सो वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ. बाय एवरीवन.